So there are two things. First is magnetic effect of electric current, in which electric current generate i- in which, due to let's suppose in which after generating electricity in a circuit, due to generation of electricity from electricity, when electricity generate in a circuit, then also around its magnetic field will generate due to generation of electricity. So magnetic effect electric current means by electric current the magnetic field is already all generated, and in EMI, due to magnet, let's suppose a circuit in which when we move a magnet upwards downwards, when we move it, then electricity is generated in the circuit without adding any kind of battery. Automatically it will generate electricity by only moving the magnet upward downward upon downward around the circuit. So in this, by magnetism we generate electricity, means by magnet, by moving the magnet we generate electricity, and in this case we generate electricity, and from that magnetic field or effect is generated. So current is directly proportional to magnetism, means how much amount of current will generate, the greater the current is generated, the greater magnetism will also generate. And so magnetism will generate by generating electricity. But what is the direction of magnetism, how we find out? So that will find out right hand thumb rule and Fleming's left hand thumb rule. By that we found the direction of that magnetism, and the what is the practical application of this. The devices which we use is electric motor, which we have to study, and in this case the application device is electric AC and DC generator. And direction, as we know, Fleming's right hand rule, in this left hand rule, and in this right hand rule. So there are two, three, four things, as the PK sir also said and the others also said, that one is magnetic effect of electric current. It means by electric current, so as we was say, and the one thing is more, that when electric current, let's suppose when in a conductor when in a conductor electric current electric current will generate, then magnetism will generate around it, and also heating effect of electric current, like as we study in the class 10th electricity, that electron collides with atom, and due to collision the force, means by that collision, in the form of heat is the heat is produced. So that is the heating effect which is generated because of electric current. So that is also thing, that heating effect of current, when electron runs, due to electric current generate, electron runs and collides with atom, and heat and heating effect generate. So that was the thing. So let's understand first what is the magnet. Magnet attracts iron or iron like materials, like alloy, like you study in class 9th 10th, that alloy, like of in iron we add some other thing, or copper we add some other things, which is the alloy mixture of iron, copper, steel, as something like that. So that alloy also attracts and metals like iron, cobalt, nickel, galvaninium, which are attracted by magnet. This is magnetic iron like material. This
is the means. And gold is not attracted by the wire. Copper will attract, but gold is not attracted by. No. Copper is also not attracted. Copper or silver, we do not know actually. That is not attracted by magnetism. So magnetism type, like you see this type of fucking things. हट यार तेरी माँ का चूत सी। So like this type of बहन की चूत साली काली। So you attract see somehow this in which one side north south mean any will be north south, and this is what can say that it shows the direction. You see a device what you say which show direction north south by, because why that's so, because in magnet moves in that direction in which they have to align the with the nature, not something like was that, not exactly this and this type of so these types of you played this type of magnet. So this type of magnet in which let's suppose and this is the magnet, so it will be one side north one side south, and if it hang in a thread it will align somehow. It have to align for this magnet in the direction where the in the nature means in the earth's north south space. Most of the accurately this magnet will give that direction. That was compost usage. This is based upon this phenomena, and that was the thing. But after how much you cut the magnet, you never be able to separate the magnets north and south pole, because however small you break the magnet, it always generate north and south. You will never be able to separate. So next thing comes the types of magnet. First magnet is natural, which is naturally present in the nature, like magnet alloys and like the magnetic materials which found in after in the मतलब वही है कि जो फैक्ट्री से मतलब ज़मीन के धूल मिट्टी से भी उसमें भी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल रखा रहता है, तभी तो मैग्नेट गिरता है। तो वहाँ से एक कुछ चीज़ें अगर मान लो कभी मिट्टी में गिर गया तो कुछ चीज़ें तुम देखोगे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेता है। तो वही सारी चीज़ें ज़मीन से मिनरल्स निकालते हैं, तो वही सारे वो वाले मैग्नेट वो सब नेचुरल मैग्नेट होते हैं। और लेकिन आर्टिफिशियल जो हम खुद ही कुछ चीज़ें ऐड वगैरह करके बनाते हैं, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल का स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है नेचुरल से। तो देखो इसमें भी आर्टिफिशियल में भी दो तरह का, एक परमानेंट मैग्नेट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स। So the permanagnet means the magnet which is permanent, which is always a magnet. If you pass it electricity or not, it is always a magnet. But in electromagnetic case means electromagnets. When you pass electricity, then magnetism property in that magnet not or can say that magnet, because whatever in the chapter we studied, that is not a magnet, that is a wire in which you pass the electricity, then magnetism will generate. We coil that wire means can say that can electromagnet. So that was the thing. After when you pass the electricity, then magnetism property, then it only magnetism. When you remove electricity, then it will not magnet. And let's see direction of magnet. So from north to south the electricity is fucked off. So from north to south let's अबे यार तेरी बहन की चूत साला। From north to and let's suppose this is so like in this way, from north to south it will emerge in outside the magnet, not inside. And in this from lower region also north
to south it will be enter, north to south in outside the magnet, in or considered from air, but in inside the magnet the direction will, let's see that the from there electricity was come, so from there to there it is fucking the magnet. Wait, बहन चोद हो जा साला तेरी माँ का चूत का. So this is from the north to south to north inside the magnet, and the direction will be, so that is the direction, and outside north to south and inside south to north, as we say. And these lines never intersect in each other. Means if you, let's suppose, will take a magnet more and it will also their magnetism, so it will never intersect each other. It will never happen that let's suppose this is also this intersect this magnetic field. No, it will never intersect each other. It will repel. So but that is the thing, that it never intersect each other. That's it. So when you take a, what can say, the for which the magnetism device comes to measure the magnetic field, what galvanometer or what, do not know name actually, but the only thing is that when you place the magnet according to the direction in which no, leave it. So when you take that galvanometer or whatever thing for magnet or magnet, so so the needle, say suppose first is upper side means 0, and when you place the magnetic in the north direction in which magnetic field lines, so it will deflect in north side direction, and so that this is the magnetic field lines is north side direction. And by that the scientists found this type of how these lines are niggling and intersecting. So by placing that device from every point and find that where it will point on that side, and by that every point it is for that is signed. So that is the thing. And let's prove that why never intersect lines each other, because let's suppose a contradictory method we for these types of methods can say, means we contradict the things which is not actually, but we imagine we in that false thing and we prove it right. We prove it. We बहन चोद साला, मतलब वही है कि गलत चीज़ को हम सही मान लेते हैं और फिर उस सही चीज़ को हम साबित करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो गलत फिर प्रूफ हो जाता है. तो वही है कि दो, मतलब let's suppose two magnets, magnetic field right we placed and it intersect in this point, intersect. So if you place that device, so and now in which direction it will say, it will deflect on this direction of north or this direction. The needle will review up down episode, so it will not possible. By this method you can prove, and that is the thing. And let's see that how when you in attraction and repulsion, how lines are intersecting and repulsing. So in this case in lines are magnetic lines are from niggling south to north, 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 opposite sides of or can say that opposite sides of magnet. So now so by not intersecting, by मतलब वही अंदर जा रहे हैं. And in this case the lines, because it not be able to intersect, so it will both of the in the case both of the magnet lines will repel each other somehow. So this really cannot intersect, so it will repel when same side. This is wrong maybe, because in this case you have to in this north and north, this is written wrong maybe.
So let's start that how a scientist, we do not know actually name, but a experiment by accidentally, he not sure but Posaya. So in that case he do some experiment, not exactly this experiment, another, but by accidentally it will discover. So from a battery it connect a, let's say, any circuit, bulb or anything, it passed the electricity, and accidentally that which device measures magnetic field lines, as you so do not know actually name, but that compass or just anything that is placed there, and by mistakenly it will present here. So when he passed the electricity, then he see that magnetic field deflect, magnetic field, not the compass, that is deflect, means by passing the electricity, if magnetic field, the compass is deflect, means that magnetic field is also generated, because magnetic field is one of, then compass is deflected. So you be able to understand what I say. So let's do experiment two. In experiment two, that one battery also placed, and this is just switch on off, and this is the main thing, that a carbohydrate, no, that suppose मतलब वही which cardboard is present, and in that cardboard we passed, by shading a cardboard, we passed a wire, and in that carbohydrate we placed some iron fillings in destructive form, मीन्स भाई बिखरा बिखरा ऐसे ही बस छिड़क देंगे तो आयरन फीलिंग्स, बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, द स्विच इज ऑन, इलेक्ट्रिसिटी विल पास्ड, एंड दैट by passing electricity, because due to when pass electricity, you know that magnetic field will generate around the, so because of that magnetic field means magnetic nature generated, and that iron film, destructive iron film में बिखरा बिखरा एक मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, मतलब बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये वो जो है मतलब भाई मतलब अरेंज्ड हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजे ऊपर, मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए. सो दिस सोज दैट व्हेन पासिंग करे इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म फील्ड, बिकॉज इट विल जनरेट इट, दिस इज प्रूफ बाय दिस. And what the direction of the magnetic field direction is like this, or what will be direction in like this, means or these two types of direction can be found. One goes outwards and then second considered inwards, or in whatever the things. So two types of things. So for finding the direction of the magnetic field student, we do something. So but first you understand the things na, that what I try to say, that in the bar magnet the lines nickling from north to south, but when what we take a wire and we pass electricity, and then in that wire, how the, because this wire becomes now magnetic field, we read that magnetic effect of electric current, when pass the electricity the magnetic effect is generated. So this wire is present, so when we pass the electricity, it then what is the direction, because it becomes magnetic field generated is becoming. So what is the direction in this wire which magnetic field is generated? So that is the thing, that from this nazariya you have to study. So that is the thing. So वही है thumb. So fuck it.
सो छोड़ो, बहुत लंबा वीडियो बन गया, वैसे भी सीख तो रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो छोड़ो बहुत लंबा बन गया, इसीलिए मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। तो देखो राइट हैंड थंब रूल, तो देखो करना क्या है, जैसा कि ये है कार्डबोर्ड, उस पर से छेद करके तार को घुसा दिया गया है, और ये पूरा सर्किट से बनाया नहीं हूँ, लेकिन समझ जाना ये पूरा सर्किट से कनेक्ट रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ जो आयरन फीलिंग्स रहेंगे वो खुद को कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस डायरेक्शन में, इस केस में अटैच करेंगे। तो वो अब इसको समझे कैसे, तो वही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मतलब कि फ्लेमिंग मतलब कि थंब वाला रूल, तो ऐसे मतलब मोड़ देना है, मतलब ये सीधा हाथ लेना है। तो देखो ये जो अंगूठा है वो अंगूठा इज इक्वल टू करेंट, यानी अंगूठा करेंट को शो कर रहा है, और ये जो हमारी उंगलियां है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का वो शो कर रहा है, और अंगूठा इज इक्वल टू करेंट एंड फिंगर्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और इसी हाथ को अब इस उल्टा नीचे करोगे तो अंगूठा नीचे रहेगा, और डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो इसके अपोजिट फॉर्म में होगा, जैसे इधर इसमें इस तरह से है तो उसमें जो है इस तरह से होगा, अगर इस हाथ को नीचे करो तो वही है, समझ गए होगे, कहने से रिपीट नहीं करूँगा। अब देखो ये तो ठीक है कि सीधे तार में कैसा होगा, लेकिन अगर तार मुड़ा हुआ हो, जो कि ज़्यादातर मुड़ा होता है, तो कैसा होगा। तो देखो जैसा कि इस केस में तार मुड़ा हुआ है और वही है फीलिंग्स को छिड़का गया है और कार्डबोर्ड पे, तो देखो कैसा होगा। तो हम इसको निकाल के सेपरेटली रख लेंगे और इसको निकाल के सेपरेटली रख लेंगे, और सेपरेट देखेंगे किसकी कैसा बन रहा है, यानी कि इतने का सीधा वाला लेंगे और इतने का सीधा वाला लेंगे, तो सीधा वाला के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो देखो जैसा कि इसमें करंट जो है ऊपर की साइड है, यानी मैं थंब रैल की इसी तरीके से प्लेस्ड होगा हाथ, और तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है, तो देखो इसमें इधर है भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, और इसमें जो है इसका अपोजिट होगा, इसमें अंगूठा नीचे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो है इस केस में जो है ये इस तरह से ना हो कि उस तरह से होगा, और देखो उसी तरह से है भी, करके देख लेना खुद ही पता चल जाएगा। तो अब इस दोनों को यहाँ पे लगा दो कि एक का डायरेक्शन इस तरह से है और दूसरे का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरह से है, और इस तरह से चीज़ें निकलेंगी और अपनी तरफ, मतलब कि तो इस तरह से डायरेक्शन है, तो इस तरह से डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो एक तरफ से जैसे सर्कल है तो एक तरफ से मतलब अंदर जा रही हैं और दूसरे साइड से यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। ये वाली चीज़ सही से समझ तो नहीं आई, लेकिन जितना है उतना बता दिया कि एक साइड से अंदर जाएगा और उसके दूसरे साइड से जो है बाहर आएगा। सो देखो अब उसी को थोड़ा और अच्छे तरीके से इसमें देखो ये अपना मेटल ले लिया गया, तो देखो इसमें वही कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये ऐसे अपने खुद को निकाल के मतलब ऐसे कर रही हैं, और ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा अब ये है तो ये वाला अपोजिट नहीं सेम ही है यार, मतलब पता नहीं जो भी हो, ये उसके अपोजिट सेम ही है, पता नहीं छोड़ जो भी हो, और फिर जो है रख लेना, और फिर जो है इस तरीके से इधर से निकल रही हैं, तो इस तरीके से ये इसमें कुछ है। अब ये काम आएगा भी, बस ये समझो कि इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, जो कि राइट थंब उसके अकॉर्डिंग देख लेना अपना जो है, अगर देखना होगा तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर है। तो देखो जैसा कि बार मैग्नेट में ये नॉर्थ टू साउथ होता है, ये बार मैग्नेट है, इधर से नॉर्थ टू साउथ होता है, वैसे ही इसमें कैसे है डायरेक्शन। तो देखो जब अगर मतलब किसी चीज़ को नॉर्थ से, मान लो ये वाली साइड नॉर्थ है जो ऊपर की तरफ से देख रहे हो, तो उसमें मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो है मतलब जैसे मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा, तो वहीं पे इसके नीचे वाले साइड से देखोगे, इधर नीचे से देखोगे तो वो जो है साउथ के साइड से, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगा। जैसे मान लो तुम हाथ घुमाओ और एक साइड से तुम देखोगे तो मतलब तुम हाथ घुमाओगे अपने साइड से क्लॉकवाइज घुमाओगे, लेकिन सामने वाले के साइड से, सब वीडियो में भी दिखे थे, सामने वाले के साइड से वो क्लॉकवाइज ना हो कि वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। वही चीज़ है कि मतलब नॉर्थ से हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज दिखे और साउथ से जो है मतलब उसके उल्टे साइड से उसका उल्टा दिखेगा। तो ये चीज़ हुई। और लेकिन शॉर्ट ट्रिक देख लो, तो देखो जैसा कि अगर नॉर्थ है तो दोनों तरफ नॉर्थ लिखो, जैसा कि नॉर्थ हो गया नॉर्थ,
नहीं नहीं, देखो जैसे कि मान लो नॉर्थ है तो इस तरीके से मतलब लाइंस निकलेंगी, फिर उधर से आके इस तरीके से बनेंगी, और अगर साउथ है तो मान लो इस तरीके से फिर जाएंगी इस तरीके से लाइन। तो बस वही बीच में कनेक्ट कर दो लाइन। तो देखो ये नॉर्थ लिखा गया, जिस तरीके से उस तरीके से कनेक्ट कर दो। देखो ये एक्चुअली में करने जाएगी तो रट लिए हो तो बना दिए होगा नहीं, लेकिन हाँ कि ये पता चल गया कि इस तरीके से करना है, इतना तो याद रहे। फिर आगे देखा तो देखो अब ये जो चीज़ है इसको कॉपी करके जो है ये मतलब यहाँ पे पेस्ट मारो। देखो वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा इस तरीके से कर दिया गया, और नहीं तो वही यहाँ से लाइंस निकल रही है और फिर यहाँ से अंदर जा रही है, वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा घुमा दिया गया है। तो देखो इसी एक को जो है इसी एक को खूब ढेर सारे एक साथ ला दो, 1 2 3 4 5, इसी एक चीज़ को जब ला के ऐसे कॉयल कर दोगे, इसी एक चीज़ को वो कॉयल कर दोगे तो इसी को सोलिनॉइड बोल देंगे। बस यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसी को ढेर सारा ला के लगा दो, मतलब कॉयल कर दो एक ताल को तो भी हो जाएगा। तो बस इसी को सोलिनॉइड बोलते हैं, नहीं तो बाकी चीज़ तो सेम है। बाकी चीज़ वही है कि यहाँ से तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो देखो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो अब ये जो भी कंडक्टर मतलब जो भी वायर है जिस तरह कॉपर का जिसका भी है, तो अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब ये चीज़ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आएगा और इस पर मतलब कुछ लाओगे तो चिपकेगा भी। तो बस यही चीज़ है कि बस यही कि सोलिनॉइड बन जाएगा। जैसा कि नॉर्मली अगर तो किसी मान लो कि स्टील रॉड में मतलब उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो उसमें मतलब बीच में जगह खाली नहीं होगी, वो रॉड है, लेकिन इसमें बीच में जगह खाली है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है तो उसी समझा रहा हूँ कि मतलब इसमें बीच में जगह खाली है, नहीं तो मोटा मोटा है यही कि ये सोलिनॉइड इस तरीके से बन जाएगा, बस इसी को बोलते हैं बस। और बाकी चीज़ वही है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये बार मैग्नेट की तरह ही होगा। जैसे नॉर्थ से साउथ में जाके इमर्ज होता है, नॉर्थ से साउथ में इमर्ज होता है, वैसे इसमें भी नॉर्थ से देखो नॉर्थ से साउथ में जाके इमर्ज हुआ, और जो है इधर भी नॉर्थ से नीचे के साइड भी नॉर्थ से साउथ में जाके इमर्ज होगा, नीचे के साइड भी नॉर्थ से साउथ में इमर्ज होगा। और बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ मतलब एकदम बीच में डिवाइड होती है, तो वो भी अपना उसके अकॉर्डिंग मतलब होगा नॉर्थ से साउथ में ही वही चीज़ें हैं। तो छोड़ो, अब आगे आते हैं। तो देखो अब एक मैग्नेट से काम करा रहे थे, अब डाई मैग्नेटिक दो मैग्नेट से हम कुछ करेंगे। तो मान लो ये एक मैग्नेट हम ने लिया जिसका इधर नॉर्थ है तो उधर मतलब साउथ भी होगा, वो समझ जाना तुम, जो उधर नॉर्थ है तो उधर साउथ भी होगा। लेकिन मान लो ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, तो इसका मान लो साउथ है ये, तो इसमें से देखो अब मतलब कहाँ से इंटरसेक्ट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखो ये है क्या, ये इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एकदम पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि एवरी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, पैरेलल है, इक्वल है, तो एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, एकदम पैरेलल, एकदम बराबर पे मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि होता क्या है, जैसा कि मान लो कि बाकी मैग्नेट में मान लो इधर का है तो मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो ये जो पास में है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन इधर के साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इधर ज़्यादा है और इधर कम है। लेकिन इस केस में जो है इक्वी डिस्टेंस है, इसीलिए बस समझ गए होंगे कि इक्वी डिस्टेंस है तो वही है कि मतलब, और इसी को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं, जो अभी एक्सप्लेन किया। और देखो अब इसमें अब हम एक वायर ला के रखेंगे, कॉपर वायर हो सकता है, वही मतलब वायर जैसे कि लिखा हूँ कि मैग्नेट और मैग्नेटिक मतलब वही जो शुरू में एक्सप्लेन किया था, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, तो वही मैग्नेटिक फील्ड छोड़ भूल जाओ, तो वही है कि आयरन कोबाल्ट निकल मतलब कोई वही है कि कॉपर हो, कुछ वायर ला के रखेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी करंट जब पास करेंगे तो
मैग्नेटिक फील्ड, तो वही एक वायर ला के रखेंगे। तो देखो मान लो कॉपर का वायर ला के रखेंगे और इसे इस तरीके से रखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना, इस तरीके से रखेंगे। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो मतलब वही है कि नीचे से सर्किट लगाएंगे, जो है नीचे सर्किट लगाएंगे इस तरीके से, और फिर करंट पास करेंगे। तो करंट पास करेंगे तो करंट तो पास होगा, फिर करंट पास होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो देखो यहाँ इतनी ही चीज़ थी। तो देखो अब ये तो अब इसका पता करना है कि डायरेक्शन किधर है इस मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए अब अगला आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उसमें करना क्या है, तो देखो जो अंगूठा है, सबसे पहले तो यही बता देता नहीं, सबसे पहले यही कि प्लेस दी फिंगर्स, ऐसा ही कुछ था कि डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी हर एक फिंगर जो है अंगूठा उंगली से 90 डिग्री पे होना चाहिए, और उंगली जो है मिडल फिंगर से 90 डिग्री पे होना चाहिए, और मिडल फिंगर जो है अंगूठा से 90 डिग्री पे शायद से होना चाहिए। तो वही कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो इसमें ये जो बड़ी वाली उंगली है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाएगी, रिपीट नहीं करूँगा, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी ये वाली फिंगर। और अंगूठा जो है, जो की इम्पोर्टेंट है, वो फोर्स का मतलब किधर की साइड फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो वो दिखाएगी। देखो क्लास 10th में जो हम केवल एक एक्सिस में, मान लो एक्स एक्सिस है तो हम शायद मतलब समझाने बता रहा हूँ, उसमें केवल इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड को घुमा के मतलब डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे जनरेटर, एसी और वो मोटर है, उसमें केवल हम एक साइड घुमाते हैं। लेकिन 11th में जो वाई एक्सिस में पूरा हम केवल अब उंगली को ही नहीं मोड़ते हैं, पूरा हम रिस्ट को ही 360 डिग्री मोड़ के अब हम वाई एक्सिस में भी मतलब हाथ को मूव करते हैं। और हो सकता है बीटेक में जेड का भी आ जाए कि हाथ को नहीं पूरा शरीर को ही घुमा के करना पड़े। छोड़ो ज़्यादा हो गया ये कुछ, बस यही था। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, बड़ी फिंगर और मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और इधर जो है थंब जो है किधर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कर दो, और देखो करके देख लेना, मैं भी करके देख रहा हूँ, तुम भी देख लेना कि ये इस तरीके से सबसे पहले रखें। तो हमने उसको ऊपर किया, तो अब हमारा मिडल फिंगर ऊपर की तरफ है, और इसमें जो है मतलब ये वो वाली उंगली जो है पहली वाली वो इसी साइड में दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और करंट जो है वो ऊपर की तरफ तो अभी किया था, लेकिन अब जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ मतलब डायरेक्शन दिखा रही है, यानी कि फोर्स इनवर्स, यानी कि अंदर की तरफ इसमें इंटर हो रहा है, यानी कि ये इसको वायर को अंदर की तरफ ढकेलेगा। और हो सकता है पॉइंट आए फिर उसके बाद वायर इसमें से निकल ही जाए, क्योंकि अंदर की तरफ ढकेला रहा है तो निकल जाना चाहिए। तो लेकिन वो छोड़ो, क्योंकि अंदर से ढकेला रहा है इसका मतलब यही है कि फोर्स जो है पहले जहाँ था वहाँ नहीं, अब वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो वो हो गया। अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे, और लेकिन उससे पहले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी कुछ थोड़ा सा बताया गया है कि देखो इसमें क्या करना है कि देखो जैसा कि ये है, हमने मान लो एक इसमें बस वही है, सोलिनॉइड तो रहेगा ही, लेकिन सोलिनॉइड जो पहले खाली होता था उसके अंदर एक जो है हम लोहा रॉड ला के रख देंगे। तो अब होगा क्या, क्योंकि देखो रॉड में अब ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं पार्टिकल्स हैं, तो अब ज़्यादा पार्टिकल्स है तो जब अब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो मतलब ज़्यादा पार्टिकल से ज़्यादा है तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि रॉड भी आ गया, अब और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पाएगा। रॉड के आने की वजह से मोटा सा है इसलिए और जनरेट होगा। तो इसको वही है कि इसको कनेक्ट करके सेल से मतलब जब जनरेट करोगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें रॉड है आयरन का, और डायरेक्शन तो वही होगा सोलिनॉइड की तरह। तो वही चीज़ है कि और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया जैसे कि बुलेट ट्रेन्स में यूज होती हैं, मतलब जहाँ तुरंत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो तुरंत काम पर जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इसीलिए कि बता दिया कि रॉड है, और एयर टैक्सी यानी जहाँ मतलब कि तुरंत चाहिए, जैसे मतलब हवा में गाड़ी उड़ेगी तो तुरंत ब्रेक लगना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट ऊपर भी होगा नीचे भी। और मैग्नेटिक ब्रेक्स वगैरह में वही चीज़ है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक चाहिए वहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में वही है कि हम बीच
इसमें मतलब सोलिनॉइड के साथ एक रॉड, सोलिनॉइड के साथ कि बिना वो नहीं से हो रहा है, लेकिन साथ ही होगा शायद से, तो हम रॉड भी ला देते हैं। तो देखो जैसा कि स्विच है, तो अगर इसको ऑन करोगे तो ये जो पहले ज़मीन में पड़ा था उसको आयरन निकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। ये अपना वो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब वही कुछ भी ले लो, मान लो कि ये कील ले लो और उसके ऊपर से ये नहीं सोच रहा कि सोलिनॉइड मतलब कि तार को लपेटना पड़ेगा कि नहीं, कि उसके बिना भी हो जाएगा, केवल मतलब कि कील ले लो, तो वो नहीं सोच रहा। लेकिन जो भी हो वही है कि ऑन करोगे तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, फिर ऑफ करोगे मतलब बैटरी से तो फिर ये इसको नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ छोड़ देगा। तो देख रहे हो ना, केवल लोहा से भी मैग्नेट, इसको प्रैक्टिकली करोगे तभी मज़ा आएगा फील। और एक बार उस तरीके से कर लोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा लंबे समय के लिए लाइफ लॉन्ग एब्जॉर्ब हो पाएंगे। लेकिन होगा मतलब कि वो करोगे नहीं, ये करोगे नहीं, इसलिए फालतू की बातें छोड़ो। अब देखो अगली चीज़ आती है कि देखो मोटर का एप्लीकेशन, जो हमने फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया। तो देखो जैसा कि ये हमारा मोटर का ये मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इसमें इसी डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ ही जाएंगे, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। मेन हमें इसमें, और देखो क्योंकि ये मतलब कह सकते हैं फिक्स्ड है, इसमें मतलब चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम केवल एक्स एक्सिस में यानी कि टेंट में घुमाते हैं हाथ को, पूरा उस तरीके से नहीं घुमा देते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है। केवल हमें मतलब आई को ही घुमाना पड़ता है, इसीलिए केवल हम एक एक्सिस में, कि वो एक्सिस गलत हो सकता है तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है इसमें उतना ज़्यादा नहीं घुमाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये फिक्स्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। जिसमें नहीं फिक्स होता है ये भी चेंज होता है, जैसे 12th में होगा तो उसमें होगा, तो छोड़ो। तो इसमें ये बता ये रहा था कि उसमें होगा क्या, कि मान लो कि ये एक तार तुमने लगाया, ये एक तार लगाया और उसमें करंट देखो इधर से जा रहा है। देखो ये भी देख लो, ये हमारा स्विच, अरे मतलब वो है, क्या बोलते हैं, वही जो बोलते हैं यार, नाम छोड़ो, समझ गए होगे। और ये सर्किट और ये हमारा इससे अटैच है कुछ, ये पता नहीं क्या नाम है। इसके बगल में जो है कार्बन ब्रशेस हैं, जो इसके कॉर्नर में एकदम कोने में है, लेकिन इससे सटा नहीं है, क्योंकि सटा है तो ब्लास्ट कर जाएगा। सटा नहीं है लेकिन एकदम उसी के पास में है, ऐसा ही कुछ था। तो ये कार्बन ब्रशेस हैं, और क्यों हैं वो बताए थे, लेकिन छोड़ो। तो देखो, और फिर मान लो इधर से भी तार आया, फिर उधर से करंट आ रहा है, तो जब इस देखो इधर से आ रहा था, फिर इसमें इधर से गया, और फिर इधर से जाएगा, और फिर वापस जो है इसमें करंट बैटरी की साइड इधर से जाएगा। तो देखो वही चीज़ है। तो देखो अब इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, और जब इसमें तुम लगाओगे तो ये जैसा कि ये है, ये किस साइड मतलब पॉइंट कर रहा है जो है ये बहनचोद। हाँ, हाथ को इस तरीके से पोजीशन में है, तो इसको नीचे घुमाओगे तो अब देखो ये करंट यानी कि मिडल फिंगर उधर की तरफ, जिधर ये है उधर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, और अंगूठा नीचे है, तो यानी कि इसमें फोर्स इधर के साइड से लगेगा। और रुको मतलब इधर के साइड लगेगा। और जो है इधर इस वाले केस में जो है ये नॉर्मली ही पहले ही पोजीशन में हाथ इसी साइड में है, करंट इसी साइड में है, तो इसमें ऊपर अंगूठा आ रहा है, तो यानी कि इधर से ऊपर की साइड लगेगा। तो देखो जैसा कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट यही है कि जब किसी भी सर्कुलर चीज़ में जब टू इक्वल अपोजिट एंड वो पैरेलल फोर्सेस जब एक्ट करते हैं एक किसी भी सर्कल या कह सकते हैं इक्लिप्स के, मतलब जो डॉट हो रेडियस हो, छोड़ो इतना जाना बस, एक टू इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, तो उसकी वजह से मोशन लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी लगेगा तो फिर इधर थोड़ा गिरेगा, तो उधर से भी लगेगा तो बैलेंस होगा। तो छोड़ो उतना नहीं, बस ये देखो ये लग भी रहा है कि इधर के साइड से लग रहा है कि इधर के साइड से लग रहा है, तो ये जो है अब ये वाला साइड जो है इधर की साइड पे आ जाएगा, अब ये वाला साइड इधर के साइड पे आ जाएगा, और इसी तरीके से चीज़ें रिपीट होती जाएंगी और ये घूमता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पंखा लगा है वो घूमता जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास किए इलेक्ट्रिक एनर्जी पास किए, और इधर से मैकेनिकल एनर्जी का वर्क हो रहा है। तो वही छोटी चीज़ें छोड़ो, टॉर्क का बता ही दिया इधर से, और इधर से बता ही दिया टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब एक्ट करते हैं।